Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture of class 11. Now we are going to start the exercise 2.2. Before this, we have already understand the concept of relation regarding the exercise 2.2, and we have also understand the concept of domain, codomain and range, and we have also understand the concept of relation. What is the relation? How can we find the relation when the sets are given, and how can we find the ordered pairs when set and relation is given. Now we are going to start the exercise 2.2, question number first. So let us see the question number first. The question number first says that let a equal to 1 to 14. A is a set of numbers which contains 1 to 3 to 14. Define a relation from A to A. The relation is given from A to A. Means we have to find the Cartesian product from A to A, means A cross A. And in A cross A, there will be 14, 14 are 196 ordered pairs. Like 1, 1, 1, 2, 1, 3, up to 114. Similar 2 1, 2 3, 2 2, 2 3, up to 214, and similar as 14, 14. We have such type of ordered pairs in A class A. A to A, the relation is given by R is equal to X comma Y. R is equal to X comma Y, such that 3x minus y equal to 0, where x, y both belongs to A. Where x comma y both belongs to A. Now we have to find the its domain, codomain and range. So first of all we will find the relation, means ordered pairs which will come in R. So if we expand the R is equal to x comma y, such that 3x is equal to y. If we transfer y from this side, then 3x will be y, and x, y both belongs to A. Now there is a relation is given. Y is the 3 times of x. Y means second element and x means first element. If we put here x, then we will got y 3, because y is equal to 3 into 1. So y equal to 3. आप समझ लीजिए कि y जो है वो 3 टाइम्स है x का. मीन्स अगर x 1 होता है x की वैल्यू, तो y 3 होगा. अगर x 2 होता है तो y 6 होगा. या आप रफ पे भी कर सकते हैं कि y इक्वल टू 3x, या कोई रिलेशन ऐसे दिया गया है तो x की जो भी पॉसिबल वैल्यू है आप रखते जाइए और y निकालते जाइए. 6 x 3 पे y 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 12, एंड व्हेन x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 15. तो x की कितनी वैल्यू आप रख सकते हैं? x की अप टू 14 तक वैल्यू रख सकते हैं और y की 42 तक वैल्यू आएगी यहाँ के लिए. लेकिन बेचार x एंड y मस्ट बिलोंग्स टू A, यानी वही ऑर्डर पेयर लिखने हैं जब तक कि x y दोनों A से बिलोंग करते हैं. तो जो 15 या 15 के बाद की नंबर है, क्या वो y A से बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि A तो 14 तक ही है. तो ये रिलेशन इतने ही ऑर्डर पेयर रख पाएगा, क्योंकि 15 अगर y 15 हो जाता है तो 15 A से बिलोंग नहीं करता है, यानी y A से बिलोंग नहीं कर पाएगा. इसलिए केवल 14, 12 तक ही लिया जाएगा फॉर रिलेशन. सो r इक्वल टू, वो आपको रफ शीट पे कर लेना है. r इज इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12. नाउ what is its domain? Write its domain. So domain is first element of ordered pair. 1 2 3 and 4 only. 1 2 3 and 4.
and what will be its range? Second elements of ordered pair, so it will be 3, 6, 9 and 12. And what will be its codomain? Codomain will be set of all second elements, set of all second elements of set, मीन्स ए क्लास ए है तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। वैसे तो ए क्लास बी अगर होता तो बी के सारे एलिमेंट आ जाते, यहाँ ए क्लास ए है तो ए के ही सारे एलिमेंट कोडोमेन में आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 4। गॉट इट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड देखते हैं। Now we have question number 2. Define a relation R on the set of natural numbers of by R. Natural number लेना है आपको, तो R is equal to एक रिलेशन दिया गया है x, y such that y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4 and y belongs to n. यानी x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस है, 4 के इक्वल भी नहीं है, 4 से लेस है। तो 4 से लेस है और x नेचुरल नंबर है यानी 0 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा 0 से, यानी 0 से बड़ा होगा और ये 4 से छोटा x की वैल्यू। एंड y बिलोंग्स टू n, एंड x कामा y बिलोंग्स टू n। अगर बेटा ये कंडीशन नहीं लगाया होता कि x की वैल्यू 4 से छोटी है और x नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम ढेर सारे नंबर्स ले सकते हैं। ऑर्डर पेयर में y इक्वल टू 1 प्लस 5, x मान लीजिए 1 है तो y आपका 6 आ जाता, x अगर 2 होता तो y आपका 7 आ जाता, 2 प्लस 5 यहीं पे रख रहे हैं रिलेशन में। अगर x 3 रख देते हैं तो y आपका 3 प्लस 5 यानी कि 8 आ जाता और x 4 लेने पर y आपका 9। लाइक सो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन x की वैल्यू के लिए कंडीशन है कि x की वैल्यू आपको 4 से छोटी ही लेनी है और नेचुरल नंबर है तो 4 से छोटी होगी और प्लस में होगी तो पॉसिबल नंबर्स हो गई 1 2 3 x की, और x की पॉसिबल वैल्यू होगी y की पॉसिबल वैल्यू 6 7 8। तो आपका रिलेशन R में जो एलिमेंट्स आएंगे हो जाएंगे 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। नाउ it is given here y equal to x plus 5. With the help of this we have find the relation. What does the question says? Depict this relationship using roster form. Roster form, it already has been written here. Roster form is element को डायरेक्ट लिखिएगा। ये आपको दिया गया था किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन था, रोस्टर फॉर्म में हो गया है। आगे कह रहे हैं राइट द डोमेन एंड द रेंज। तो आई थिंक डोमेन यू कैन राइट हियर, डोमेन इज इक्वल टू first element of order pair 1 2 and 3 1 2 and 3 and codomain range is equal to 6 7 8। got it? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक, आइए थर्ड देखते हैं। The start form of the question number 3 is written here. A is a set given here, B is another set given here, R is a relation from A to B which is stated here. X comma y is such that the difference between x and y is odd. x और y ऐसे आपको ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें कि x और y का जो डिफरेंस हो वो ऑड आए। तो ऑड डिफरेंस कब आता है? जब एक इवन हो और एक ऑड हो। अगर दोनों इवन है तो डिफरेंस भी इवन आएगा, अगर दोनों ऑड है तो डिफरेंस भी ऑड है तो इवन आएगा। अगर एक इवन है और एक ऑड है देन ओनली डिफरेंस विल बी ऑड। ओके, तो क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? पहला ऑर्डर पेयर तो हो जाएगा 1 4 1 6 1 9, 1 के लिए फिर 2 4 2 6 2 9। अब किसका किसका डिफरेंस ऑड होगा? तो क्या 1 4 का डिफरेंस ऑड होगा? यस, ऑड होगा, क्योंकि 1 -4 तो -3
ऑड आएगा। So we have 1 4 taken or not taken because difference between 1 and 4 is 3 or -3, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि आप x से y माइनस करिए या y से x माइनस करिए, आपको बस डिफरेंस देखना है। यदि उसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए कि प्लस माइनस में नहीं इससे मतलब है, तो आपका 1 और 4 का डिफरेंस ऑड आएगा, 1 और 6 का डिफरेंस ऑड आएगा, लेकिन बेटा 1 और 9 का जो डिफरेंस यानी एज है वो ऑड नहीं आएगा। तो 1 9 हमारे सेट में रिलेशन में नहीं आएगा। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके 1 4, आर पेयर में 1 6, क्या 2 4 आएगा? 2 और 4 का डिफरेंस इवन छोड़ दीजिए, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आ जाएगा, तो 2 9, ठीक है। 3 4 ऑड आएगा, ले लेते हैं। 3 6 ऑड आएगा, ले लेते हैं। 3 9 नहीं लिया जाएगा, इवन हो जाएगा। 4 4 इवन, 4 6 इवन, 4 9 ऑड होगा, तो ले लेते हैं। एंड 5 4 ऑड आएगा, ले लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? 5 6 ऑड आएगा, ले लेते हैं। और 5 9 नहीं दिया जाएगा क्योंकि इवन आ जाएगा। और आगे का है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर तो रोस्टर फॉर्म में हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शायद रिलेशन के बारे में बता दिया गया है। कहा जा रहा है द फिगर 2 पॉइंट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P and Q, राइट दिस रिलेशन। तो यहाँ पे P एक सेट है और यहाँ पे Q एक सेट है। P के एलिमेंट हैं 5 6 7 और इसके 3 4 5। 5 से 3 रिलेटेड है, 6 से 4 रिलेटेड है, 7 से 5 रिलेटेड है, ये Q। तो कह रहे हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो तुरंत लिख लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो R का मान लेते हैं A कामा B है सच दैट। आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा 5 3 6 4 और 7 5 से रिलेटेड है। और इसमें एक बात कॉमन है कि सब में से डिफरेंस 2 का है, यानी x y से 2 पॉइंट ज्यादा है, 2 टाइम्स नहीं 2 डिजिट्स ज्यादा है। तो 5 प्लस 2 x भी ज्यादा है, यानी कि x की जो वैल्यू है a कामा b में a की जो वैल्यू है वो b से 2 ज्यादा है। मींस रिलेटेड a इज इक्वल टू b प्लस 2। अब a भी है क्या, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको कि a कहां से कहां तक है, b कहां से कहां तक है। तो a लिख देते हैं कि a कामा b बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर हैं। बट a की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है, a की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा और 7 या 7 से कम। तो बस बाकी तो आपको पता ही चल जाएगा कि और a भी हमारे किससे रिलेटेड है, नेचुरल नंबर से। तो ये हो गया। अगर a फिक्स कर दिए कि 5 और 7 के बीच में लेना है तो b भी आपका फिक्स हो जाएगा, q भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि जो q के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ अगर 5 6 7 रखेंगे तो 5 पे 3 आ जाएगा, 6 पे 4 आ जाएगा और 7 पे 5। दूसरा अगर हम फॉर्म बात करें अपने सेट रोस्टर फॉर्म की, तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा रिलेशन। कौन कौन से आर्डर पेयर आपको मिले इसमें, 5 3 6 4 एंड 7 5। आएगा समझ? तो ये हो गया। आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू 2, a से b का डिफरेंस 2 है। तो ये आपका हो चुका है। आएगा समझ? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Now we have question number 5. Written here, A आपका एक सेट है और R जो है वो A कामा B है रिलेशन, और वो इस तरह से डिस्क्राइब है कि A और B दोनों एक ही एलिमेंट हैं और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, यानी कि B जो है वो A से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब ये वाली नंबर ये कंप्लीटली डिविजिबल है A से, यानी A फर्स्ट नंबर से, इस सेकंड नंबर ऑर्डर पेयर की फर्स्ट नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो है। तो आपको R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। ध्यान से देखो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6।
तो क्या 1 1 1 2 1 3 1 तो सबका होता है डिविजिबल डिवाइड फैक्टर ना, तो यहाँ पे 1 के साथ सब आ जाएंगे, यानी 1 1 आएगा रिलेशन में, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा और 1 6 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, b मतलब ये नंबर डिवाइड होने चाहिए, 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 3 1 को नहीं डिवाइड कर पाता है, हाँ 1 3 को डिवाइड कर देता है, तो ये 1 के साथ। ऐसे 2 1 आएगा नहीं, 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 1 में a डिविजिबल है b से, b थोड़ी डिविजिबल है इससे, तो ये नहीं आएगा। 2 2 आएगा क्योंकि 2 2 से डिविजिबल है, 2 4 आएगा और 2 6 आएगा, 2 7 आने का चांसेस ही नहीं है इसमें, तो कोई 2 8 नहीं आएगा। 1 3 3 आ जाएगा और 3 6 आ जाएगा बस, क्योंकि सॉरी 4 4 अभी आएगा, 4 4 और 4 5 4 6 डिवाइडेबल नहीं, 5 5 और 6 6, इतने रिलेशन में हमारे एलिमेंट्स आए हैं ना। आगे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डोमेन, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, रेंज भी वही होगा, डोमेन भी वही होगा। तो ये मतलब ए से ही रिलेशन भी और डोमेन भी है और रेंज भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आ कहा जा रहा है, सेकंड और थर्ड आप कर लेंगे, इसका बिल्कुल सिंपल है। तो 6 क्वेश्चन में देखते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि r = x, x + 5, x, x + 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। सिंपल है, यहाँ पे 0 तो 0 + 5 यानी 0, 5 एक रिलेशन में, फिर 1 रखें तो 1, 1 + 5 यानी 1 6 2 7 3 8 which x belongs to, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये नहीं कहा है कि ये दोनों ही x से बिलोंग करने चाहिए, तो ये 6 7 8 तक आ सकता है, लास्ट में 5 10 पे आपका उठ जाएगा, समझ रहे हैं। अरे x की केवल यहीं पे और यहीं पे उठा के वैल्यू रख के ऑर्डर पेयर बना दीजिए, वही अपने रिलेशन में एलिमेंट होंगे।